Hello everyone, this is Ashna. Hello everyone, Start. this is Ashna Anand from College Dunia. As we say, critical to being a leader is self-awareness. For the initiate of thoughts on education, today we have with us Dr. Neha Pandey, Principal, Pairing Group of Colleges. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you. So, ma'am, please share your journey towards the education industry. Ma'am, I've started around 30 years back. Initially, after having graduated in engineering, then MBA, PhD in emotional intelligence, I was working in the corporates for 10 years. And thereafter, I realized that I'm more of a people's person, where I want to be around people, talk, and all that. So, this was one thing which motivated me towards education. And then, since 2003, I have been only into education, and I've worked with the top ranking institutes and universities in last 30 years. That's really great, ma'am. So you are in the education industry from the decades. Yeah. We can say that. Yeah. That's really great. decades. So, ma'am, what are the Yeah. key factors that keeps you connected towards the education? See, today people think education is just teaching the books, but education is beyond that. We are empowering our students, we are making them financially independent. गूगल से पढ़ के कोई बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए, हो सकता है कुछ बन जाए, लेकिन वो एक शिक्षक का रोल नहीं होता, वो एक टीचर का रोल नहीं होता. वी आर नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, वी आर द एजुकेटर्स वेयर इन वी नीड टू इनकलकेट some habits into a child so that the holistic development can be done. यानी academics भी बच्चे का अच्छा हो, personality development भी हो, और तीसरी सबसे important बात है वो एक अच्छा human being बने. तो इन सब चीज़ों से एक अच्छा बच्चा एक अच्छा human being बन सकता है. और अगर हमने ये सब करा दिया तो I think we are, we can be very happy and we can have a sound sleep that we've done a great job and we have done justice to being a teacher. Yes, definitely, ma'am. So you are in position of leadership. You are part of a management. जी. So, ma'am, what's your philosophy of your leadership style, and how would you describe your leadership style? See, I'm a true believer of doing things. First of all, we have to do it and then motivate our team to do it. यानी lead by example जो कहते हैं हम लोग, कि पहले खुद करो. आपको जब खुद काम नहीं आता, आप दूसरे से नहीं करवा सकते. दूसरी बात है कि आप उनके you put yourself in their shoes and then understand their issues also. At times we can't be like dictators. That's not a proper leader. Yes. A true leader who takes everybody together. और कई बार जॉब चेंजेस भी होते हैं. ठीक है, हमने एक बार लीव कर दिया, अगली बार किसी और टीचर को बोलेंगे कि नाउ दिस इज अ इवेंट, दिस इज अ प्रोग्राम, नाउ यू बोलेंगे. तो वो यू कीप चेंजिंग योर रोल्स, जैसे आपने देखा होगा ट्रायंगल में जब ईगल्स फ्लाई करते हैं या बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो उनका लीडर बार बार चेंज होता रहता है. वो थक जाता है तो दूसरा पीछे चले जाता है. तो उनका लीडर बार बार चेंज होता रहता है. हमें मौका देना चाहिए कि वो एक फ्लाई करते हैं तो उनका लीडर बार बार आए और काम करे और एम्पावर करे. उसको गाइडेंस तो उनका लीडर देते हैं. दैट्स द वे आई वुड लव टू वर्क एंड आई डू वर्क लाइक दैट ओनली. Definitely, ma'am. That's really great. So, giving the opportunities to others, मतलब उसके लिए बहुत ही courage लगता है, क्योंकि this is a experimental उससे काम आसान thing. हो जाता है सबका. आज आपकी हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ Yes. लाइन तैयार हो जाती है काम करने के लिए. बिल्कुल, कभी बिल्कुल. एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है. दैट इज द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी हैव इवॉल्व्ड ओवर हियर, और उस तरीके से हम लोग काम करते हैं. Definitely, ma'am. So, ma'am, you are a part of a management, as maximum of the discussion happened in the college. Definitely, you are the part of that. जी. So, ma'am, एक हमारी पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. बिल्कुल. उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली व्यानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है? सी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी आई है जिसमें सेमेस्टर स्कीम हमें इम्प्लीमेंट करनी है. वो यूनिवर्सिटीज़ ने सिलेबस बनाया है Yes. और सारे काम हो रहे हैं, और एक स्ट्रक्चर बना दिया कि फर्स्ट टू थर्ड ये क्लास चलेंगी. बट हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात करते हैं, उसमें जो मेन एम्फोसिस है वो है बच्चे की प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे, है ना, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस का. अभी तक कई बार ऐसा होता था कि बच्चा फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन किया, सेकेंड ईयर भी कर लिया उसने, और कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी आई कि बच्चे की पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई, तो वो बच्ची 2 साल करने के बाद भी ग्रेजुएट नहीं कहलाएगी. तो 2 years हैव गॉन वेस्ट. नाउ थ्रू द मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम एटलीस्ट उसके पास 2 years का एक एडवांस डिप्लोमा होगा. 1 year के बाद बच्चे ने एग्जिट किया तो एक डिप्लोमा होगा. और इसमें ये ऑप्शन भी है बच्चे के पास में कि 2 साल बाद बच्ची वापस आ जाए. 2 साल का गैप आ गया उसका, कोई बात नहीं, अपनी फैमिली कोई लाइबिलिटीज है उनको कंप्लीट कर लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर लो, आप उसके बाद में तीसरे साल में आओ और अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लो, देन यू कैन बिकम अ ग्रेजुएट. तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है. इसके अलावा जो एक मेन एम्फोसिस है वो है स्किल डेवलपमेंट का.
दूसरा है वैल्यू एजुकेशन का। और बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मैं आप बताऊं 2006 से हम लोग कॉलेज में काम कर रहे हैं। तब से ही हमने ये शुरू किया था कि हमें पार्ट टाइम मतलब 1 लेक्चर पर वीक और 2 लेक्चर्स पर वीक एड ऑन कोर्सेज यानी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराने ही कराने हैं बच्चे को। ये विजन था कि कॉमर्स का बच्चा है तो उसको टैली ज़रूर आना चाहिए, उसको अकाउंटेंसी आनी चाहिए, उसको एक्सेल आना चाहिए, उसको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। अगर बच्ची फैशन डिज़ाइनिंग से है तो उसको कोरल ड्रॉ भी आना चाहिए। शी शुड नो हाउ टू डू द डिज़ाइनिंग ऑन कंप्यूटर्स। If the child is from science, they need to know C language also. ये बहुत जगह नहीं सिखाया जाता, लेकिन साइंस के बच्चे को सी लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। वो सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी करा रहे थे। आईटी की अगर बात करें तो अगर आईटी के सेक्टर में हमने जो स्किल गैप आइडेंटिफाई करते थे हमेशा, अगर आज जावा की डिमांड है और करिकुलम में नहीं है जावा, तो हमने हमेशा एडिशनल वर्कशॉप्स कराई और उसको उस गैप को फिलअप किया सो दैट माई स्टूडेंट्स आर प्लेसेबल, दे आर इंडस्ट्री रेडी। तो ये चीज़ें हम लोग पहले से कर रहे थे, पर अब अच्छा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एक प्रॉपर सिस्टम हो गया, everybody will be doing it, so I mean that's amazing. Plus credit transfer is a very good system because many students, you know, they go to for higher education, they go to foreign universities and there they ask for the credit transcript. हमारे यहाँ पे भी बच्चे जापान हर साल जाते थे और बच्चे की ट्रांसक्रिप्ट वहाँ मांगते हैं। जब यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ मार्क्स वाली ट्रांसक्रिप्ट आती थी, लेकिन उनको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है क्रेडिट सिस्टम वाली भी। लेकिन अब नई सिस्टम में उनको क्रेडिट वाली ट्रांसक्रिप्ट भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले सभी बच्चों को ऐसी ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी जो कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी वैलिड होगी। प्लस एडिशनल पढ़ना चाहते हैं कुछ बच्चे, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स अर्न करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन है उनके पास में। दे कैन अर्न एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, यानी 52 क्रेडिट्स का अगर आपका 1 साल है, आपने 2 कोर्स और एक्स्ट्रा कर लिए 4-4 क्रेडिट के, तो 8 क्रेडिट आपने एक्स्ट्रा अर्न कर लिए, वो आपके हायर एजुकेशन में भी काम आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई अभी एजुकेशन पॉलिसी में। तो बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तो डेफिनेटली उससे पहले ही सारी चीज़ें, हाँ मैम, वैल्यू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे हम लोगों का शुरू से फोकस था और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिकॉज दीज आर 3 important things through which a child can become a complete person, you know. That's really great मैम। सो मैम ये तो बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस करता है जी। नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए आपका क्या विजन है, या आपके क्या टॉप प्रायोरिटीज है जो आप अचीव करना चाहते हो, या इन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हवा है मैं कहूँगी, या जो कल्चर है, या जिसमें हमने डेवलपमेंट किया है हमारे ओवरऑल, यू नो, इंडिया एज सच, आई वुड से द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. So it is very important that we sow that seed among our students. तो हम तो ये चाहते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स बच्चे बने, क्योंकि अगर बच्चा नौकरी लेता है तो खुद के लिए ही लेता है, लेकिन अगर बच्चा एंटरप्रेन्योर बनता है तो और 100 बच्चों को नौकरी दे सकता है। तो 100 बच्चों की नौकरी लगवाना और एक एंटरप्रेन्योर बनाना एक बराबर है। तो हम लोगों का शुरू से फोकस ये है, हमने स्टार्टअप सेल बनाया है, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है कि बच्चे जो अपने आइडियाज़ लेके आएँ, उन आइडियाज़ को हम नर्चर करें, उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लेके आएँ, ताकि फाइनली वो एक कंपनी बन सके और बच्चा उस पर काम करके अपना एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बने। तो एक फोकस तो हमारा एंटरप्रेन्योर पे रहेगा। दूसरा फोकस है कि हम लोग कोलैबोरेशन में काम करें। आज इंडिया में हम लोग इंस्टीट्यूट में हैं, बयानी गर्ल्स कॉलेज में, अगर हमारे कोलैबोरेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, अदर टॉप रेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। हो सकता है 2 चीज़ें हमारे कॉलेज में अच्छी हैं, 2 किसी और में भी अच्छी हो सकती हैं। वी कैन कोलैबोरेट फॉर दैट। लाइक वी साइंड MOUs विद लॉट ऑफ जापानीज पार्टनर्स। उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। सिमिलरली वी आल्सो हैव MOUs विद मेनी कंपनीज फॉर प्लेसमेंट्स in India for students passing out their BBA, BCA, MBA, MCA, MSc, BSc, सबके लिए हैं। अभी हम लोगों ने सोचा कि हमें academic partners भी होने चाहिए। Like we are signing up a MOU with one of the top leading universities in Jodhpur and many more universities are on the road. ये हमारा विजन है कि हम academic partners और industry partners अच्छे होने चाहिए, ताकि बच्चों का बच्चे अच्छे से नरिश हो सके, बच्चों को अच्छी नॉलेज मिल सके, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिले और फाइनली उनका अच्छे से प्लेसमेंट हो। तो कोलैबोरेशन के थ्रू ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। That's really great. So ma'am, Bayani is doing, like I can say, doing amazing things. जो चीज़ें लोग कॉम्पिटिटर के हिसाब से वो एक अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं, they are doing great, but Bayani is doing
डेफिनेटली ग्रेट थिंग कि हाँ ठीक है, आप लोग इस चीज में अच्छे कर रहे हैं, हम इस चीज में अच्छे कर रहे हैं, तो लेट्स we can जो आप collaborate, प्रोवाइड yes. करवा सकते हो वो बिल्कुल, प्रोवाइड बिल्कुल. करवा दो, जो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं डेफिनेटली Like we have a very excellent biotechnology lab. तो हमने वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बहुत सारे बाहर के बच्चों को हम यहाँ इनवाइट कर सकते हैं. दे कैन कम एंड डू देयर प्रोजेक्ट्स. आते भी हैं डेजर्टेशन के लिए, बच्चे बाहर से भी आते हैं कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी लैब में जितना अच्छा काम हो रहा है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, तो हम लोग यहीं से ट्रेनिंग करना चाहते हैं. और कॉलेजेस के बच्चे, तो वी आर वेरी ओपन फॉर दैट. प्लस वी हैव अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैनेजमेंट वेयर वैल्यू एजुकेशन और एथिक्स पे हम लोग बिजनेस लीडर्स को सिखाते हैं. तो अगर बाहर कॉर्पोरेट्स के यंग लीडर्स जो हैं, उनकी एजुकेशन में अगर ये वाली चीज़ कहीं इनकम्प्लीट रह गई है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे आके शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं 20 आवर्स 30 आवर्स वो कर सकते हैं. तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम है. सिमिलरली वी हैव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर IT ऑल्सो. एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना सिखा रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे सब ऐप डेवलपमेंट करते हैं. तो ये अच्छी चीज़ें, जो हमारे पास अच्छा है उसके लिए हम आपको देंगे, आपके पास जो अच्छा है वो आप हमें दीजिए, एंड वी कैन कोलैबोरेट एंड बोथ ऑफ अस कैन ग्रो टुगेदर. बिल्कुल मैम, बहुत ही अमेजिंग है. तो मैम इतना एडवांस हमने बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को बना दिया, तो इस एडवांसमेंट के साथ हमारी फैकल्टीज, हमारे HODs को भी उसी एडवांसमेंट के साथ चलना होता है. तो बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उन HODs और फैकल्टीज के लिए कैसे ऐसे प्रोग्राम्स है जो बना रहा है, ताकि वो इस पूरी जो एडवांसमेंट जा रही है ना उनके साथ साथ में चल सके, क्योंकि जब वो साथ चलेंगे तभी वो डेफिनेटली बच्चों को भी वही चीज प्रोवाइड करवा पाएंगे. आप सही कह रहे हैं मैम, क्योंकि टीचर ही सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है बच्चे को बनाने में. तो टीचर का स्किलफुल होना, टीचर का एम्पावर्ड होना, टीचर का फुल वैल्यू बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है. अब अगर बात आती है स्किल डेवलपमेंट की, जो भी नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अगर सबसे पहले तो हम FDPs कराते हैं. FDP यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम. उस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से फुल 1 मंथ 2 मंथ रिगरस ट्रेनिंग होती है. कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई उसके ऊपर, नया कॉन्सेप्ट आया उसके ऊपर, और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक ट्रेनर को या सेट ऑफ ट्रेनर्स है, 5 ट्रेनर्स को तैयार कर दिया. अब वो ट्रेनर्स फर्दर और ट्रेनिंग कराते हैं बाकी टीचर्स को. ट्रेन द ट्रेनर वो प्रोग्राम होता है. फिर जब सारे टीचर्स इस बात में ट्रेंड हो जाते हैं, एंड देन फर्दर वी गिव इट टू द स्टूडेंट्स. तो आप देखिए कि एक टीचर, 5 टीचर, 10 टीचर्स ने ट्रेनिंग ली, सारे लोगों को तैयार किया. उसके बाद बच्चों को जब एक अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है तो बहुत उसका इम्पैक्ट होता है. Like business communication है, communication for that matter is very important tool. Everybody should have good or effective communication. अगर आज हमें लगता है कि वो कमी टीचर में भी अगर है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं है, सो वी हैव ट्रेन्ड आवर टीचर्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फर्स्ट, एंड फर्दर डाउन द लाइन द टीचर्स आर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स. कम्युनिकेशन लैब होती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन लैब, उसके थ्रू, बिकॉज द स्टूडेंट्स विल गो ग्लोबल आफ्टर पासिंग आउट, आफ्ter doing their 3 years of graduation. Somebody will go to Canada, Australia, US, UK, Japan. And the other most important thing that strikes to me is now that we've started a Biani language school. In that, we are imparting Japanese language, we are imparting German and French. These are the 3 languages through which we have started, and anybody who wants to register can approach the college group which is responsible for this education. तो हमने एक टीचर अलग से आइडेंटिफाई किया कि जापानीज लैंग्वेज के लिए एक कोऑर्डिनेटर है, इंग्लिश के लिए, क्योंकि बच्चे IELTS भी करते हैं, जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, जापान जाना है, तो बच्चे जापानीज लैंग्वेज पढ़ते हैं और उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं. नर्सिंग के बच्चों के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे टाइप्स किए हुए हैं. डिमांड इज मोर देन व्हाट वी कैन सप्लाई, बट लैंग्वेज इज वन रिक्वायरमेंट विच कैन रियली टेक यू ग्लोबल. डेफिनेटली मैम, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर कह सकते हैं वो रह जाता है अगर if you are not comfortable with the language. Naturally, if you have to go to Japan, you should be knowing Japanese, not because it's mandatory, but it's because your survival, your performance will be better. Yes. If I'm talking to you in English and you're talking to me in the same language, we feel more comfortable. Yes. Similarly, if I do not understand your language, I am going to be at the loss. So it's very necessary that I must understand, say, Japanese, French, German. These languages are very popular and students are going global. Every year students go for them because Europe provides very good opportunities for scholarships, and even Japan for that matter. MEXT is one scholarship which is given by the government of Japan, and every year 1 or 2 students are going for their higher education from our college.
सो वो तभी हो पाता है बिकॉज जापानीज लैंग्वेज बच्चे सीख लेते हैं और उन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपके नंबर, आपके क्रेडिट्स इंपॉर्टेंट हैं, पर लैंग्वेज भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको हायर एजुकेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज से अगर परस्यू करनी है तो. Really great, ma'am. So, ma'am, in the last, I just wanted to ask you, like, feedback or suggestion, कुछ भी जो आप हमारी जो upcoming generation है, upcoming entrepreneurs है या upcoming students है, उनके साथ शेयर करना चाहते हैं. नहीं, देखिए बच्चे बहुत अच्छे हैं. आजकल के बच्चे बड़े फोकस्ड हैं. दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, बट just keep your head in control. That's all I would say. And this can happen through a proper training. Like since I have done my PhD in emotional intelligence, it is one IQ cannot be increased by many folds, but your emotional quotient can be increased. और उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ तरीके होते हैं. अगर उन तरीकों से आप इमोशनल कोशेंट अपना इंक्रीज करते हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू आर मोर सक्सेसफुल, आपकी रिलेशनशिप सबसे अच्छी रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और आप सक्सेसफुल रहेंगे. और हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ. तो सक्सेसफुल का यही राज है कि आप अपने मन को एकाग्र करो. मन को एकाग्र करने के लिए कि आप 10 मिनट 15 मिनट अपने आप से बातें करें, क्योंकि हम अपने आप से ही बातें नहीं कर पाते हैं. अब 10 मिनट खाली अगर बैठना हो, immediately we pick up our phones and keep, because we can't sit together alone. We have not learned how to talk to ourselves. So I think each child should give time to themselves, do some positive talk, because उससे हमारा subconscious mind है जो ट्रेन होता है. तो बच्चों को तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपने माइंड को ट्रेन करो. माइंड को अगर ट्रेन कर लिया तो सब कुछ अच्छे से ट्रेन हो जाएगा. That's really great, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your valuable time. Thank you for having me here. Thank you.